Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we'll do exercise 5.2. Part A, add the following. We will add the sum. We have rupees 35 and we have rupees 35 and 40 paisa plus rupees 18 and 30 paisa. We will add the like as a sum. 0 plus 0, 0. 4 plus 3, 7. Dot, we will put the dot. And 5 plus 8, 13. 13, 3 right here and 1 carry. 3, 1, 4 and plus 1, 5. We have rupees 53 and 70 paisa. Now next sum we have rupees 55 and 25 paisa. Add the sums like 5 plus 0, 5 and 2 plus 5, 7. Put the dot. 5 plus 5, 10. Answer is 10 and 1 carry. 5 plus 2, 7 and 1, 8. Now we have rupees 80 and 75 paisa. Now next sum we have rupees 35, 50 paisa and plus rupees 63 and 50 paisa. We will add 0 plus 0, 0. 5 plus 5, 10 and 1 carry on it. 6 plus 3, 9 and 1 carry at 10 and we will carry on next row. 6, 3 plus 6, 9 and 1, 10. So the answer is 100 rupees. Okay, students? Now these sums try by yourself. Now B part, subtract the following. We will subtract this sum. Sum number 1, we have rupees 48 and 50 paisa minus rupees 25 and 30 paisa. We will subtract, means minus. 0 minus 0, 0. We will 3 minus from 5. The answer is 2. So counted 8 and minus 5. How many left? 3. And 4 minus 2. How many left? 2. Now we have rupees 23 and 20 paisa. Now next sum we have rupees 75, 25 paisa minus rupees 41 and 18 paisa. We will borrow from 1. 5 smaller than 8. So we will borrow from 2. So we have 15 and 15 minus 8. The answer is 7. So we have here 1 left. 1 minus 1, 0. And 5 minus 1, 4. And 7 minus 4, the answer is 3. So we have rupees 35 and 7 paisa. Now next we will have rupees 36 and 50 paisa minus
rupees 20 and 75 paise. We have 0 and 5. 0 is smaller than 5, so we will borrow from 5. So we have 10. 10 minus 5, 5. So now here left 4. So 4 is smaller from 7, so we will borrow from 6. We will write here 14. 14 minus 7, 7. Now 5 here left, so 5 minus 0, 5. अगर y के नीचे 0 होते तो सेम आ जाता है वही. 3 minus 2, 1. So the left answer rupees 15 and 75 paisa. Friends, I hope you understood this exercise. Try by yourself. Friends, today we'll do exercise 5.3 word problem of money. Sum number 1. Weber bought a drawing book for rupees 65 and a notebook for rupees 32. How much did he spend in all? वेबर ने नोटबुक एक ड्राइंग बुक खरीदी 65 रुपीज़ में और अ नोटबुक 32 रुपीज़ में. हाउ मच, उसने कितने रुपीज़ खर्च किए? तो फर्स्टली हम कितना करेंगे, जब रुपीज़ वाले सम आते हैं तो हम उसको कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टेटमेंट बनाएंगे, सोल्यूशन लिखेंगे इसका. ठीक है, तो कॉस्ट मीन्स प्राइस. रुपीज़ कितनी है? कॉस्ट ऑफ अ ड्राइंग बुक बेटा कितनी है? 65. सो यू विल राइट हियर 65. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक 32. यू विल राइट हियर 32. टोटल कॉस्ट, अब इन दोनों की टोटल कॉस्ट आप इन दोनों को प्लस करोगे. वी विल आंसर राइट हियर 97. ओके, नाउ सम नंबर 2. रजनीश हैज रुपीज 100 विद हिम. उसके पास 100 रुपीज हैं. ही बाइज अ बेल्ट फॉर रुपीज 65. उसने 65 रुपीज की बेल्ट खरीदी. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हिम नाउ. अब उसके पास कितनी मनी रह गई है? तो क्या लिखेंगे? टोटल मनी. तो रजनीश के पास कितनी मनी है? टोटल 100 रुपीज. और बेल्ट खरीदी, यानी कि इट मीन्स बेल्ट की कॉस्ट कितनी हुई? कॉस्ट ऑफ अ बेल्ट 65. मनी इज लेफ्ट. अब कितनी मनी लेफ्ट बची उसके पास? यू विल सब्ट्रैक्ट 65 फ्रॉम 100. अब 100 में से हम 65 को माइनस करेंगे, घटाएंगे. तो आंसर इज रुपीज 35, यानी उसके पास 35 रुपीज लेफ्ट है. नाउ थर्ड सम. ज्योति वांट्स टू बाय अ नेकलेस विच कॉस्ट रुपीज 90 50 पैसा, but she has only rupees 65 and 25 पैसा with her. ज्योति के ने एक नेकलेस लेना चाहती है. उसकी कीमत क्या है? 95 रुपीज एंड 50 पैसा, बट उसके पास ओनली कितनी रुपीज है? 65 एंड 25 पैसा. हाउ मच मोर मनी डज शी नीड to buy a necklace? She need to buy a necklace. कितनी, अब उसके पास नेकलेस के लिए कितनी मनी और चाहिए? उसको कितनी जरूरत पड़ेगी? कॉस्ट ऑफ ए नेकलेस, यानी कि उसकी कॉस्ट क्या है नेकलेस की? रुपीज 90 एंड 50 पैसे. और ज्योति हैड मनी, ज्योति के पास कितने पैसे हैं? 65 रुपीज एंड 25 पैसे. तो उसको और कितनी चाहिए? शी नीड्स मनी मोर. कितनी मनी और चाहिए उसको? वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 65 रुपीज 25 पैसा फ्रॉम 90 रुपीज एंड 50 पैसा. हमने 65 रुपीज और 25 पैसे को 90 रुपीज और 50 पैसे में से माइनस करना है. तो हमारे पास आंसर क्या है? रुपीज 25 एंड 25 पैसे. नाउ नेक्स्ट सम. सुरेश हैड रुपीज 210 एंड 50 पैसे इन हिज पर्स. उसकी पर्स में
सुरेश के पर्स में कितने रुपीस है उसके पास? 210 and 50 पैसे. His mother gave him rupees 50 and 75 पैसे. उसकी मम्मा ने उसको कितने रुपीस दिए? 50 रुपीस और 75 पैसे. How much money does he have now? अब उसके पास कितने रुपीस रह हो गए हैं? तो क्या सोल्यूशन? देखो, सुरेश हैड मनी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हमारे पास सुरेश के पास कितनी मनी है? 210 and 50 पैसे. मदर गेव हिम रुपीज 50 and 75 पैसे. अब 210 रुपीज एंड 50 पैसा में से 50 रुपीज और 75 पैसा हम इसको प्लस करेंगे और कितनी टोटल मनी होगी उसके पास? यू विल ऐड दिस. ठीक है. नाउ ही हैज नाउ मनी. कितनी मनी अब उसके पास? 200 रुपीज 261 and 25 पैसे. Okay students, I hope you understood this exercise and write on your math notebook. Okay, thank you.